और जी न्यूज़ ने एक स्टिंग किया है, जी मीडिया ने, जहाँ पर चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा कई बातों का खुलासा करते हैं। प्लेयर्स इंजेक्शन ले रहे हैं, विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच जो है झगड़ा चल रहा है, कई सारी बातें जो कि काफ़ी चौंका देने वाली है। और क्रिकेट जिस प्रकार से रन हो रहा है बीसीसीआई में, तो उस पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कहना है सर? नहीं, मेरे को उस पर ना तो मैं देखा हूँ वो, ना मेरे को उसके बारे में कुछ मालूम। मगर विराट कोहली तो दुनिया का एक बेहतरीन बैट्समैन है और हमारे मुल्क के लिए, हमारी टीम के लिए उन्होंने तो बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को जिम्मेदारी दी कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन करवाए जाए, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा है और जितना जल्दी हो सके हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन होने चाहिए, ताकि सही मानों में हैदराबाद के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो उनके मौके नहीं मिल रहे थे और इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये यकीन है कि जेन्यून मेरिटोरियस जो नौजवान बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा और हैदराबाद की क्रिकेट की टीम को वो उरूज हासिल होगा, वो कामयाबी मिलेगी जो हमको माजी में पास में मिलती थी। सर, क्या आप समझते हैं कि बीसीसीआई को एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग करना चाहिए जिस प्रकार से? ये मेरे को नहीं मालूम, ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। Sir, on the BBC issue, IT has been conducting searches today, second day. Allegation is that BBC involved in tax violation and transfer pricing rules violation. Your stand on it? Well, I will go by with the statement of what the Editors Guild and the Press Club of India issued a statement. And I feel that those two statements are absolutely right. And freedom of press is very important for a functional democracy. And I hope that the BBC will not be pressurized and the BBC will continue to show the truth. Do you see political vendetta as being alleged by other opposition leaders that there are no raids or searches on Adani, but the BBC office is attacked because they went ahead with a documentary on the Prime Minister? Well, when it suited BJP during emergency, their leaders used to praise BBC. And in fact, now the leaders have quoted in his book that he used to listen to BBC radio while in jail in emergency, and then tell his BJP, then Jan Sangh or whatever party they belong to, about what is happening in India. So now we see that these raids are happening. But I am sure that the BBC will continue to show the truth to the people. The timing is absolutely wrong, and that is why the Press Club and the Editors Guild have issued a right statement about condemning these raids. जेडीयू के जो एमएलसी है उन्होंने भी एक बात कही, 30% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाना चाहिए सेना में, ताकि खासकर पाकिस्तान से जो टेररिज्म हो रहा है उसका वो जो है सामना कर सके। लोहा लोहे को काटता है, इसलिए 30% आरक्षण दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं स्टेटमेंट सुनाने मेरे को नहीं मालूम, आप बोल रहे तो मैं सुन रहा हूँ। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बोला तो उन पार्टी के प्रेसिडेंट को रिएक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका पार्टी का प्रेसिडेंट तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो क्या बोलेंगे इस बारे में। The Andhra Governor Abdul Nazir's appointment has also kicked up a storm. Do you see it's a justified move? Well, you see, there is no constitutional bar on appointing anyone or a retired judge to the honorable post of governor. But as the legal maxim tells us that justice must not only be done but also be seen to be done. Now, if some doubts arise in the minds of the laymen or the common people, that the biggest litigant in this country is the government.
Now, if you immediate after your retirement, you are given a post by the same government who's the biggest litigant and you were presiding over that litigation. So some doubts might arise in the mind of a common man. I don't know whether those doubts are genuine or not. But justice should not only be done but also be seemed to be done. So these doubts should not have arisen, So, and then if there's such doubts, I don't know whether they are genuine or not, but then this will lead to so many questions in the future. I don't know why the Honorable retired judge has accepted this post, because as a judge he was given a house and every facilities. Now, I am reminded of what a late BJP leader had said when he was in opposition. He later on became the finance minister of our country, about post-retirement appointments. So it is for the BJP to answer this question. सर, ये यहाँ की तेलंगाना की बात करें तो हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी आपके एमएलए ने कहा असेंबली में कि 50 सीटों पे हम करेंगे। तो ये लग रहा था कि एमआईएम और टीआरएस जो कि एक फ्रेंडली अलायंस है, तो उनके बीच में दरार आ गई। तो क्या वाकई एआईएमआईएम तेलंगाना में ज़्यादा सीट्स कॉन्टेस्ट करेंगी और अपना जो वर्चस्व बढ़ाएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि एमआईएम पार्टी इसका फैसला लेगी। आपने? हाँ, एमआईएम पार्टी इसका फैसला लेगी। तो अभी फैसला लेने का टाइम नहीं आया कि हम कितने सीट पे लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। जब सही वक्त आएगा उस वक्त इंशाल्लाह सही फैसला लिया जाएगा। तो क्या सही फैसला सर, सीट्स बढ़ेंगे या आप? अब वो सही वक्त आया ही नहीं, तो अभी क्यों बताएंगे आपको? जब वक्त आएगा जब बताएंगे आपको। अभी क्या है, इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो क्या है, अब कौन से फरवरी में है ना, इलेक्शन है, शुरू हो रहा ना सर? हाँ, नहीं शुरू हो रहा। प्रकार से टेम्पर से देखने को मिल रहे हैं या पॉलिटिकल जो पोस्टरिंग शुरू हो गई है, क्या है? चलते ऐसा कुछ भी नहीं। जो सही वक्त आएगा सही फैसला इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सही फैसला लेंगे। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं तो कई बार बोल चुका हूँ। ये सरजमीन हमारे बाबा आदम यहीं पर आए थे, तो मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, अपना टेलीकास्ट भी किए थे उसको। तो वो मौलाना जो फरमाए हैं वो मेरे को नहीं मालूम, मौलाना खुद उसकी वजाहत दे सकते हैं। Sir, Hyderabad Rangareddy Mehboob MLC elections is turning out to be a direct battle between the BJP and the MIM, considering that the BRS डायरेक्ट बैटल बिटवीन the BJP and MIM, considering that the BRS MIM कहाँ से आ गए उसमें? वो MIM कहाँ से है उसमें? जाफरी साहब, नहीं, वो तो लोकल बॉडीज से है। वो MLC. हाँ, MLC लोकल बॉडीज से है वो तो। बट वो तो उसमें लोकल बॉडी ऑफ हैदराबाद, नॉट ऑफ महबूब नगर और रंगारेड्डी। okay. लोकल बॉडी ऑफ हैदराबाद ओनली। So that is turning out to be a fight between BJP, MIM, Congress, considering that the BRS is likely to support you again. No, these are all mere speculations. I cannot comment on it because the MLC election is only for the local body related to GHMC only. The other is for teachers, I think so. Teachers of from 3 districts. So that is different. This is different. लेकिन आपकी दोस्ती कैसे है अभी, क्योंकि आप केसीआर साहब से एक तरफ मिल रहे हैं, दूसरी तरफ केसीआर जो है असेंबली में कांग्रेस की तरफदारी करते हुए दिखे, तो आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? भाजपा तो साफ कह रही है कि लग रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच में दोस्ती हो रही है। नहीं, मैं हमेशा चीफ मिनिस्टर की इज़्ज़त करता था, इज़्ज़त करता रहूँगा। और परसों असेंबली में जाकर मैं KT रामाराव साहब से मुलाकात किया था, तो वो तो है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि
आज तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ, जो तेलंगाना में हैदराबाद हो या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, पीने के पानी का जो मसला था, उसमें तो उन्होंने काम किया। इसमें तो कब लोग देखते हैं, तो यकीनन और काम करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत जो वादे आवाम से किए थे उसको पूरा करेगी, और यही हम लोग असेंबली में बोल रहे हैं, उठा रहे हैं। नहीं, टीआरएस और कांग्रेस की दोस्ती के बारे में भी अटकलें लग रही है आपको? अरे वो आप कभी मेरे से पूछते कि आपकी दोस्ती है नहीं है, फिर आप उनसे पूछते कि उनसे जो नहीं अब ये अगर बीआरएस कांग्रेस से भी दोस्ती करेगी और एमआईएम से भी भाई दोस्ती करेगी तो देखिए मेरी दोस्ती की बात करिए आप, अब कोई दूसरे की दोस्ती हो रही नहीं हो रही, मेरे को उससे क्या करने का है। लेकिन वो अगर आप उनके समर्थन में नहीं है, कांग्रेस की तरफ नहीं खड़े हैं, तो कांग्रेस अगर बीआरएस के साथ है तब क्या आपकी दोस्ती बीआरएस? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? आप लोगों को खामखा बड़ी उम्मीद लगी हुई है कांग्रेस से आप लोगों को। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस कहाँ है बताइए ना आप, कांग्रेस कहाँ है? उनके कई लीडर्स जो है वो अब एक पैर पे खड़े हुए हैं, इधर भागने उधर जाने के लिए। कांग्रेस कहाँ है? अब कांग्रेस को उनके लीडर निकले ना, वो क्या कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ो, हाँ हाँ, अब वो लोगों को हाथ ही नहीं मिला रहा उनकी पार्टी में, लोग दूसरे से कर रहे हैं, वो कोशिश कर, अच्छा है, करना चाहिए कोशिश, उनको बहुत अच्छा है, करनी चाहिए। अब मैं क्यों किस पे दूसरी पार्टी पे कमेंट करना, कौन दोस्त हो रहा नहीं हो रहा। हम जिसको अपना दोस्त बोले दोस्त रहेंगे, जिससे हमारे को मुकाबला करना है मुकाबला करेंगे। But MIM's expansion plan in Telangana is something that you're considering seriously? Every political party wants to strengthen their party. It is a natural process. Every political party does it. इसमें क्या बुरी बात है? तो करेंगे, यानी सोचेंगे सही वक्त नहीं, अरे सुनिए, नहीं, आगे बढ़ेंगे। सुनिए मेरी बात। नहीं तो आपको सिर्फ 7 सीटों की पार्टी। एक मिनट, यहाँ हम दारुसलाम में हफ्ते में 6 दिन बैठते, क्यों बैठते भाई? कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई एमएलए आपको कुछ ऑफिस ही नहीं है, हम लोग बैठते, क्यों बैठते भाई? हमारा एक पब्लिक से हमारा एक रिश्ता है, और हमारा मजलिस का जो रिश्ता है आवाम से, सियासी रिश्ता नहीं, एक रिश्ता है, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बैठते हम लोग। हमारा जज्बा है, हम काम करेंगे। काम नहीं करना है क्या? जनता का काम करना है। ऐसी जैसा ये दफ्तर है वैसे पूरे डिस्ट्रिक्टों में भी दफ्तर। अरे हम तो सबको, हमारे सब लोगों को, हमारे पार्टी के हर कॉरपोरेटर को बोलते हैं कि भाई आप जनता के, आवाम के दरमियान में रहिए, उनका काम करिए। मगर आप लोगों को बहुत जल्दी है, इलेक्शन दिसंबर में होगा ना, अभी से आप लोग बोल रहे हैं तैयारी से शुरू अरे करेंगे। अब आप लोग बोलो हम तैयार नहीं है क्या? अच्छा, हम ही तो तैयार, दूसरे तैयारी के लिए तैयारी करते हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। तैयार है कि हाँ, ज्यादा सीट्स कॉन्टेस्ट? बिल्कुल, दूल्हा तैयार है, हमेशा फिक्र मत करिए आप। ज्यादा सीट कंटेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो पार्टी फैसला करेंगे। अभी से कैसा बोलेंगे आप लोगों को? क्योंकि दूसरे राज्यों में भी आप अपना विस्तार कर रहे हैं, तो इसीलिए अब ये उठा है कि हैदराबाद और खासकर तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद या इन इलाकों में क्यों अपने आप को पूरा विस्तार नहीं करते? अभी टाइम आने दीजिए, बताएंगे आपको। टाइम आने दीजिए, बताएंगे। इतना जल्दी क्या है उसमें? यहाँ पर बहुत से पार्टियां हैं, सब है, भी जब अभी तो टाइम ही नहीं आया उसका, कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप खामखा गलत फहमी पैदा करना चाह रहे हैं। आप क्यों गलत फहमी पैदा करना चाह रहे हैं नहीं मालूम आप लोग, मुझ में और सीएम में या दूसरों में।